Going to record, and let me share the screen and let's go to the lecture. सर लाइट आ गई. हाँ जी, लाइट आई है अभी थोड़ी देर पहले. Okay, let me open the lectures. This is D drive. This is backup. Where is teaching term? Supply chain management. Yes, got this one and this one. Yeah. Right, is my screen visible to all of you? I've shared it. Right. I hope everyone is able to view my screen. Yeah, it is shared with everyone. भाई लोगों स्क्रीन नजर आ रही है ना? Yes sir. Okay, right. Today's lecture is about chapter number Yes sir. chapter number 3 from the same book we are following for the course, and this is chapter number 3 for today's topic, and the title of chapter number 3 is outsourcing, make versus buy. Right, this is the topic, make versus buy. So this topic is about the companies. They are the conglomerates, they are the gigantic sized businesses. I mean, these are the multinational firms, these are international firms, right? And they have got different operations, they have got different departments, like they have product innovation, like they have, supply chain management, they have customer relationship management, they have brand management, they have sales and marketing. So when we talk about a company has got many functions, many departments, right? So all of the jobs one company cannot do, one company cannot handle. Company has to decide what that can be done better by itself and what that cannot be done better by itself. If your company is able to perform all of the jobs, I mean, this has got certain plus points and the negative points for your company. If you're doing A to Z, entire of the functions, entire of the jobs, entire of the activities or initiatives are going to be performed by your company. This is not easy, right? So you have to choose, I mean, what kind of activities you're going to do by yourself, and what kind of activities you're going to outsource. So this chapter is about that decision for a company, that what kind of activities, what kind of parts, what kind of jobs, what kind of initiatives I can do better at my own company, and what I cannot do better at my own company. I need to outsource. I need to take the services from third party or somebody else to perform these kind of activities for myself. So this chapter is all about this kind of stuff. So company has to decide make versus buy decisions. What I can make, we should make. What you cannot make, you should buy or you should outsource. So the theme or the concept, that is very simple, that this is the trade-off between make and buy, right? So this is a strategic decision. It is not easy. I mean, it takes a lot of time to decide that these are the core processes I should be performing it myself. These are the sportive processes, I cannot do it my own company. So what I can do, what I cannot do, this is not easy. You need to go
many meetings to decide it. For example, what is supply chain? Supply chain is very simple. I mean, this is starting from the raw material, converting into finished goods, and approaching the right customer or the final customer. So this chain or this network involves many activities and many uh, tasks, right? So this is, the supply chain involves a number of firms and encompasses all activities associated with the transformation of goods from a raw material state to the final. So this was the basic definition. So your company is the focal firm or the nodal firm. That is one of the same thing. And there are certain core strategies, core processes, and there are certain sportive processes and sportive strategies. That discusses few examples of the Nike. For example, Nike is a shoe manufacturing company. So the focus of the Nike could not be, the design and actual production or the manufacturing of Nike shoes. The focus of Nike company, that could be the brand management, that could be the customer relationship management. ठीक है, बात बड़ी सिंपल है कि आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कौन सी सर्विसेज आप लोग खुद करेंगे, कौन सी सर्विसेज आप लोगों को बाय करनी है. उसने बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं. तो उसने एक एग्जांपल दी है, नाइकी की. नाइकी एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक ऑथेंटिक ब्रांड है, एथलीट्स का, एथलेटिक प्रोडक्ट्स का. तो उसमें वो कहता है कि जी शायद उसके लिए जूता बनाना उसका कोर प्रोसेस मुमकिन है ना हो, राइट. जूता वो कहीं और से बनवा सकता है, वो अपनी स्पेसिफिकेशन देगा कि जी नाइकी का पेयर ऑफ जॉगर या पेयर ऑफ स्नेकर्स या पेयर ऑफ ट्रेनर्स कुछ भी है वो इस तरह का होना चाहिए. तो उसके लिए कोई थर्ड पार्टी भी मैन्युफैक्चर कर लेगा उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक. बट नाइकी का काम क्या होगा? नाइकी's job is to Nike's job is to manage the brand. तो उसने अपनी ब्रांड मैनेजमेंट इतनी वर्ल्ड क्लास रखनी है कि जो नाइकी का ब्रांड इमेज है वो हमेशा यही रहे कि जो भी स्पोर्ट्समैन, जो भी एथलेटिक, जो भी कम्युनिटी नाइकी के जॉगर्स पहनने वाली है, when they go for a Nike joggers, when they go for buying a Nike, buying a jogger, so they must buy the Nike. Nike should be the number one choice in their mind, buying a joggers at the trainers. Right, this is how the core processes are defined. For example, they was talking about the Ford Motor Company. Motor Company, I've already discussed one of in my class on campus. That Ford Motor Company that was believing in the vertical integration. Vertical integration means all of the processes that were performed by the Ford Motor Company. I mean, production was being done. I mean, tires, engine, electronics, fuel system, body, seats, cover, leather, everything that was involving a car manufacturing process. It was solely done by Ford Motor Company. But today, there is shift of paradigm. I mean, companies, they not go with vertical integration. When companies believe in horizontal integration, companies believe in trade-off, between choosing the things or activities that can do better. Everything you cannot do, you cannot do better, everything you cannot perform in the super fast way or in the world class manners. So you need to decide. For example, that is again discussing the CEO of the Dell Computers has stated that if the company was vertically integrated, it would need 5 times as many employees as would suffer from the drag effect. So if you integrate your company vertically, you decide to perform all of your activities that are involved in your business. So you might need 5 times more employees. राइट, अगर आप कहते हैं कि जी मैं A to Z फंक्शन सारे के सारे अपनी कंपनी में खुद परफॉर्म करूं, तो आपको काम करने के लिए जो अपने बंदे रखे हुए मुमकिन है वो 5 गुना ज्यादा चाहिए हों और वो बहुत महंगा हो जाए कि आप सारी चीजें खुद से ना कर पाए. सो आपने डिसाइड करना है कि मुझे क्या बनाना है और क्या बाय करना है और क्या आउटसोर्स करना है. चलो इसको लेके थोड़ा सा आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट को.
वो भारतीय एयरटेल का ना एक आउटसोर्सिंग का, जो भारतीय एयरटेल क्या है वो उसकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, तो उसने कहा कि जी मेरी बिलिंग के लिए कोई और कर दे, राइट, मेरी नेटवर्किंग को कोई और देख ले, मैंने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करनी है, तो उसने बेसिकली अपने नेटवर्क ऑपरेशंस को आउटसोर्स कर लिया। तो लोगों को लगा कि यार ये भारतीय एयरटेल इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ब्रांड है, टेलीकॉम ब्रांड सबसे बड़ा है, राइट, और ये अपनी नेटवर्क ऑपरेशंस को ही आउटसोर्स कर रहे हैं, right? So that was astonishing news, surprising news for all of the business and for the masses in India. And there was a debate for many months कि यार ये भारतीय एयरटेल ने क्या किया। तो भारतीय एयरटेल ने बताया कि यार नेटवर्क ऑपरेशंस मैं बेहतर नहीं कर पा रहा था, नेटवर्क ऑपरेशंस मैंने आउटसोर्स कर लिए, मैंने अपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को फोकस कर लिया, राइट, मैंने अपनी बिलिंग को बेहतर कर लिया, मैंने अपने और पैकेजेस और जो मेरे टेलीकम्युनिकेशन के कोर ऑपरेशंस थे, लाइक माय ऑफरिंग टुवर्ड्स कस्टमर्स, मैंने उसको बहुत बेहतर कर लिया। सो आई फोकस्ड ऑन दीज एक्टिविटीज जिससे मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा था। और नेटवर्क ऑपरेशंस पे आई वाज स्पेंडिंग मच एनर्जी, मच टाइम एंड मच ह्यूमन फोर्स on network operations, and I was unable to handle that properly. So I decided better to outsource my network operations. So there is another company that is giving me the services of network operations. So I'm better doing my job with my customer relationship management. I'm designing the better packages for my customers. So I'm okay with this because these are my core processes. अच्छा, बात समझ में आ रही है कुछ लोगों भाइयों? Yes, sir. इंग्लिश बहुत बोल रहे हैं आप। सर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा क्या कह रहे हैं आप। अच्छा चलो, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं ये फाइल्स भी शेयर करूंगा, तो इसको बस ऐसा ही है, कुछ गुजारा करें। चलिए जी, अपने कोर प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करना है। आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है ना? Yes, sir. यस सर, बस ठीक है, चलो। आवाज तो सर आपकी प्रॉपर आ रही है लेकिन समझ नहीं आ रही। Right, identifying the core processes. It looks very simple to see it, right? But this is very complex. This is very strategic. This is very complicated rather. So identification of the core process is a crucial to see for any of the companies, because companies simply sometimes they themselves do not know that this is my core process or not. Either I should go with this or I shouldn't go with this. Either I should focus this or I shouldn't focus this. This is not that easy. Let's go to another thing. With the Microsoft entry into the video game business, all of us might have used Xbox or at least heard about the Xbox. Well, Xbox, there was the gaming solution, right? There was the Microsoft products. And do we know that Microsoft got entry into the mid 1990s into the gaming industry? When the Microsoft decided to enter the gaming industry, it was all about the mid 1990, right? So that ultimately came out with the Xbox. And did you know Xbox was not designed by Microsoft, right? Michael Marks, CEO and chairman Flextronics, commented that Flextronics that there would be no Xbox, only the idea of it. Microsoft has done of worry. The CEO of Flextronics was a company that designed the Xbox hardware, right? Microsoft job was all about designing the software, and it was labeled as Microsoft products. Xbox was a product of Microsoft, and in fact, Xbox was not designed by Microsoft. Microsoft designed the software, which you do not, which is not visible to the consumers. That is something inside the device. The Xbox was kept on the shelves in different stores, right? And that was being sold for the $400 around, and everyone was seeing the packing and packaging of Xbox in the device, but no one knows that inside software that is only designed by the Microsoft. Rest of the entire designing that was designed by Flextronics, but there was no name of Flextronics. Flextronics was a company that designed the actual Xbox layout, format, the hardware,
So the Flectronics CEO said, if there is no Flectronics, there is no Xbox. Microsoft might have, tons of money, but that cannot design, the hardware. So Microsoft outsourced Flextronics to design the Xbox. Right? Is this clear? Is this example is clear? Yes, sir, it's clear. ठीक है, आपका नाम क्या है जो आप बात करिए, मैंने देखा नहीं है. Larib Afzal, sir. हाँ, लारे, मुझे लगता है आप और मैं ही पढ़ते हैं, बाकी लोग भी पढ़ते हैं शायद. हाँ, समझ आ रही है हमें. गुड यार, यार कोड हाँ? पढ़ रहा है. गुड. द बिजनेस प्रोसेस रूट. अच्छा, अब ये थोड़ी सी अगेन छोटी छोटी टेक्निकल चीजें होती जा रही हैं कि ये है क्या, बिजनेस प्रोसेस रूट में क्या है. इसमें वो सिंपल छोटी सी में ये बात बताएगा कि यार जो कोई भी एक कंपनी है, कोई भी एक बड़ा बिजनेस है, उसके 3 बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, 3 बड़ी डायमेंशंस होती हैं काम करने के लिए. अच्छा, उसने कहा कौन कौन सी होती है. नंबर 1 इज कस्टमर रिलेशंस. Okay, you need to sustain your relationship with your existing customer, right? And you need to, come up with new customers. You need to enhance your customer base, and you need to have a healthy business, profitable relationship with your existing customers. 2 काम आपने करने हैं. एक तो जो existing customer है उसके साथ एक अच्छा relationship बना के रखना है, और दूसरा काम क्या करना है कि Customers बनाना. हाँ, नए कस्टमर्स को लेके आना है. तो कहते हैं जी, एक तो बहुत बड़ा पंगा, बहुत बड़ा रौला, बहुत बड़ा मसला जो है वो ये होता है. एक मिनट देखूं किसकी डेथ हुई है. इधर व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया. चले, एक तो ये रौला है. अच्छा, फिर उसने कहा जी दूसरा बड़ा रौला क्या है जो बिजनेस प्रोसेस के अंदर इंपॉर्टेंस रखता है. तो वो था प्रोडक्ट इनोवेशन. Going to meet all. Right. The second biggest dimension to work in, there was product innovation. Right. It's all about the designing. It's all about the research and development. It's all about production. It's all about innovation management. ये एक दूसरा बड़ा dimension, एक दूसरा बड़ा मसला हो सकता है किसी business में. And third biggest dimension, that is supply chain management. How would you manage your supply network? How would you manage your supply chain? That could be the third biggest area to work in, right? तो ये 3 बड़े एरियाज हो सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए काम करने के लिए. अब आप ये देखें कि आपकी कंपनी करती क्या है, उसके कस्टमर्स क्या हैं, उसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसके सर्विसेज क्या हैं, उसके कंपेटिटर्स क्या हैं, उसकी मार्केट क्या है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आपका सेटअप कितना बड़ा है. सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, so you need to decide कि जी आप क्या कर सकते हैं. Either you would focus this, customer relationship management, or you are going to focus to, the product innovation, research and development, production, manufacturing processes, or you should to manage your supply chain management. So you can perform 3 of these if you are very smart. You can perform 2 of these if you are good. You can perform 1 of 3 if you have limited amount of resources. ये बात कितने लोगों को समझ में आई? जी सर, आगे समझ. ठीक है, चलें. अब हम बात ये करते हैं कि उसने एग्जांपल्स दी आपको इस बिजनेस प्रोसेस रूट के अंदर. उसने एग्जांपल दी. उसने कहा जी वॉलमार्ट का नाम कितने लोगों ने सुना हुआ है? जी सर, हमने सुना हुआ है. वॉलमार्ट क्या है यार? वॉलमार्ट का सर ये रिटेलर्स हैं, हमने इस पे अपनी प्रेजेंटेशन दी थी. ठीक है. ये दुनिया का सबसे बड़ा चेन है, रिटेल आउटलेट का एक चेन है. अमेरिकन कंपनी है बेसिकली वॉलमार्ट ना. ठीक है. इसके बहुत बड़े स्टोर्स हैं, सारी दुनिया में इसके स्टोर्स. आप जहाँ भी जाएंगे वॉलमार्ट का स्टोर आपको जरूर मिलेगा. चलें, अब जो वॉलमार्ट बेसिकली रिटेल आउटलेट है, अब इसको किस चीज पे फोकस करना है? लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. Right, Walmart is a retail outlet. That is biggest retail outlet in the world. That is Walmart. अब जब retail
अब रिटेल आउटलेट का काम क्या होता है? दैट इज अ बिग बिल्डिंग, राइट? और उसके बाद क्या होगा कि different products, there are different sections, all of the products of daily use life, that are available under one roof, and that is a gigantic kind of big retail outlet. This is what Walmart is. अब 3 एरियाज जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि उसमें कस्टमर रिलेशनशिप है, उसमें आपका प्रोडक्ट इनोवेशन है, और उसके बाद आपका सप्लाई चेन है. तो वॉलमार्ट एक कंपनी है जो रिटेल आउटलेट है. आई एम आस्किंग यू वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट व्हाट शुड वॉलमार्ट फोकस ऑन अमंग्स दीज 3 एरियाज? वो प्रोडक्ट इनोवेशन करेगा वॉलमार्ट? जी सर, लेकिन मेन फोकस सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी होगा उसका, क्योंकि उस सब ओवरऑल जितनी भी उसकी आउटलेट्स हैं उन सब की अगर सप्लाई चेन होगी वो प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं कर सकता बिकॉज दैट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राइट? वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे फोकस कर सकता है, बट अगेन दैट इज नॉट इट्स कोर प्रोसेस. उसको क्या करना है? उसने अपने शेल्फ पे सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं. आपको जो चीज चाहिए वॉलमार्ट जाएंगे, आप विजिट करेंगे, आप बाय करेंगे, आप घर चले जाएंगे, राइट? उसका फोकस क्या होगा? उस वॉलमार्ट का फोकस ये है कि मुझे अपने सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करना है. जब भी कोई बायर वॉलमार्ट विजिट करे, कोई भी ब्रांच विजिट करे, तो जो चीज उसको चाहिए हो वो उसको मिले. That shouldn't be out of stock, right? That should be well placed on the shelf to buy. So this is the core process. The business process route जो उसको समझ में आएगा कि entire focus that should be put on, managing the supply network. All of the products which I usually sell out on daily basis, that must not be finished, So I should have, enough stock to cater any kind of demand. ठीक है, ये पैंडेमिक आया तो क्या हुआ? लोग they were rushed towards the different stores, and single body they was buying in bulk, and end of the day the stock was finished. और फिर उन्होंने बताना ये शुरू कर दिया कि प्लीज आप एक फैमिली या एक बंदा इतना कुछ बाय ना करे, let the other people buy also, right? So किसी भी एक रिटेलर के लिए, किसी भी एक वॉलमार्ट कंपनी टाइप स्टोर के लिए उसका सप्लाई चेन होगा. अच्छा, फिर उसके बाद वो बात करता है डेल की. ठीक है, डेल क्या है? डेल इज अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राइट? उस पे उसने कहा कि किस चीज पे उसका फोकस होना चाहिए. ये फोकस वो यूजुअली करता है. अच्छा जी, डेल क्या करता था? डेल कंप्यूटर्स फोकस ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट capabilities. Of course, within the identified core processes, the firm can examine the activity in public. अच्छा, वो क्या कहता कि जी sometimes जो डेल कंपनी थी उसका फोकस मुमकिन है, मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट उसका कोर प्रोसेस नहीं बनता था, लेकिन फिर भी उसको समटाइम्स फोकस करना पड़ा सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अब देखें, पहली बात यह है कि आप बड़े सियाने हैं, आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बड़े विजनरी हैं, और उनको पता है कि आप किस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और आपको क्या आपका कोर प्रोसेस है और आपको फोकस किधर करना चाहिए. अगर ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है. इन केस अगर आपने इसमें गलती कर ली तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा. समटाइम्स आप इसको चूज करने में गलती नहीं भी करते तो भी लॉस हो जाता है, राइट? यानी आपने अपना कोर प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस को सही आइडेंटिफाई किया, उस पर फोकस रखा, उसके बावजूद देयर आर चांसेस ऑफ फेलियर्स, राइट? तो मतलब उसको नेग्लेक्ट करके तो मरना ही मरना है, तो उसको सही चूज करके भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है. अच्छा, फिर उसने बात की एचपी की. एचपी क्या है? ह्यूलेट पैकर्ड ना. एचपी इज अगेन electronics company that usually manufacture the desktop computers or the laptops and the printers, और ये सारी चीजें हैं HP की. तो HP का फोकस किस चीज पे होगा? क्या वो कस्टमर रिलेशनशिप पे फोकस करेगा? क्या वो सप्लाई चेन पे फोकस करेगा? No. The entire priority and the entire focus of HP, there would be product design and product innovation, because वो printing इंडस्ट्री का वो लीडर है, और उसके जो प्रिंटर्स हैं और उसके जो डेस्कटॉप हैं और उसके जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं वो HP, उसमें उसका मार्केट शेयर बड़ा है. तो दैट ऑलवेज ट्राई टू कम अप विद इनोवेटिव डिजाइन, स्टाइल
एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब उसका एक अच्छा लैपटॉप बन जाएगा, एक अच्छा कंप्यूटर वो डिजाइन कर लेगा, एक अच्छा प्रिंटर वो बनाने में कामयाब हो जाएगा, क्वालिटी प्रिंटर बनाने में कामयाब हो जाएगा, तो वो बिक जाएगा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी शायद हो जाएगी, और सम वे द अदर वो सप्लाई चेन भी मैनेज कर लेगा। तो उसका फोकस सप्लाई चेन या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, राइट? द एंटायर फोकस दे शुड बी ऑन इनोवेशन, दे शुड बी ऑन डिजाइन, there should be on layout, there should be style, packaging of the product. So is this clear? Yes, sir. Good. तो ये दो चार एग्जांपल्स वो उसके साथ कर रहे थे। नाइकी की एग्जांपल उसने फिर यहाँ कोट की, नाइकी की भी ये बात कर रहा था। नाइकी या कि बेनेटॉन, वो ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करते हैं। ये जितने भी लग्जरी आपके ब्रांड्स होते हैं ना, टॉकिंग अबाउट द राडो वॉचेस, टॉकिंग अबाउट द रोलेक्स वॉचेस, टॉकिंग अबाउट द टैग Heuer वॉचेस, टॉकिंग अबाउट द Adidas, talking about the Reebok, talking about the Nike, and all luxury and authentic, top of the line products. ठीक है, वो प्रोडक्ट तो उनकी अच्छी होती ही होती है, प्रोडक्ट तो आउटसोर्स भी कर लेते हैं ना, बट दे नीड टू बिल्ड अ बिगर ब्रांड इन द आईज ऑफ योर कस्टमर्स। वही कि जी आप जब भी जूता बाय करें तो आप नाइकी बाय करें, आप एडिडास बाय करें, राइट? आप घड़ी बाय करने जाएं तो आप रोलेक्स बाय करें, आप टैग Heuer बाय करें, ये करें। सो फोकस है, तो आपको यही देखना है कि आपका जो इंटायर फोकस है वो क्या होता है। राइट, मूविंग। सर ये जी जी, वलीद तंग कर रहा है इसी करके सर। कौन बात करें? सब वलीद प्राइवेट मैसेज करके तंग कर रहा है। किसको तंग कर रहे हैं? चलें जी, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर रूट। अब वो हमने बिजनेसेस की बात की कि यार हमारे लिए क्या हमारा कोर एरिया है, अब वो आर्किटेक्चर रूट की बात करेगा, तो उसमें इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना बड़ा इजी है। अच्छा, इसमें वो आर्किटेक्चर की जब बात करता है तो इसमें वो कहता है कि देयर इज ऑलवेज अ सब सिस्टम फॉर एनी कंपनी, और एक कंपनी के अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स काम करते हैं, और एक सब सिस्टम के अंदर बहुत सारे, या हु इज दिस नॉनसेंस? हाँ, ये पापड़ करारे वाले को बताओ कि ये रिकॉर्ड होता है सेशन। सर आप प्लीज म्यूट कर दे सबको। सर म्यूट कर दे सबको। ये पापड़ करारे वाले का मुझे नाम बताएं जरा, ये है कौन, बस ये बता दें। सर मैं खुद नहीं शो होगा। इसके सर म्यूट कर दे सबको। इसके पापड़ तो सीधे करेंगे जरा। आपको माइक शो हुआ होगा जिसने कहा है सर। यार वो समथिंग सर यही आवाज लग रही थी कुछ। सर ऐप के साथ एक डोमेन अटैच हो जाती है, उसका सर्वर पता चल जाता है, तो हम ये रिपोर्ट भी कर सकते हैं। सर बोला रिकॉर्ड है इसमें, वो अच्छा, ये चवले मार रहा है। अच्छा, जज्बाती नो, खैर सुने जरा। चले, प्रोडक्ट लास्ट की समझ नहीं लगी, प्लीज रिपीट कर दें। यार ये बात ना कर, तेरी मेहरबानी यार। ठीक है, इसको मैं अपलोड करूंगा, मैं चैनल पे अपलोड किया करूंगा, वहां से जरा इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जब ये मैं आपको फाइल भी व्हाट्सएप कर दूंगा, उससे भी कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी आप लोगों की। अच्छा चलें, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर रूट। अब इसमें क्या स्यापा है? इसमें स्यापा ये है, वो ये कह रहा है कि जो एक कंपनी है, राइट, जो जितने भी वो काम करती है, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं, और एक सब सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। उसकी उसने एक एग्जांपल दी कि यार एक कार है, जब एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कार बनाती है तो कार के बहुत सारे सब सिस्टम है। कार का एक सब सिस्टम क्या है? इंजन। कार का दूसरा सब सिस्टम क्या है? दैट इज चैसिस। कार का तीसरा सब सिस्टम क्या है? फॉर एग्जांपल वो उसका फ्यूल सिस्टम है। तो अब उसने कहा अगर मैं इंजन पे जाऊं और इंजन के आगे कंपोनेंट्स देखूं तो 10,000 कंपोनेंट्स होंगे जिनसे मिलकर इंजन बनता है, राइट। मैं उसके फ्यूलिंग सिस्टम देखूं तो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके उसका एक सब सिस्टम, जिसको मैं फ्यूल कह रहा हूं, वो बनता है। और उसके बाकी कार इलेक्ट्रॉनिक्स बेतहाशा ऐसे छोटे छोटे पुर्जे हैं जिनसे मिलके वो कार बनती है। तो 10,000 कंपोनेंट्स लगता है तो एक गाड़ी बनती है,
राइट। और गाड़ी के जो बड़े सब सिस्टम है वो 3-4 ही होते हैं, राइट। इंजन, चैसिस, फ्यूलिंग सिस्टम एंड another electronics. That's okay, that's all about the car, right? तो इसमें वो ये कहता है कि आपको डिसाइड ये करना है कि मेरा कौन से वाला सब सिस्टम स्ट्रेटेजिक है और कौन से वाला सब सिस्टम नॉन स्ट्रेटेजिक है। अब स्ट्रेटेजिक क्या होता है? which is important, which rapidly changes, right, and that has a strong impact on the performance of your product. That is strategic one, and otherwise is non-strategic. ठीक हो गया? तो अब हम नीचे जरा वो जो उसका डायग्राम है उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। चलो इस डायग्राम पे आइएगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस, कंस्ट्रक्ट प्रोडक्ट आर्किटेक्चर। मैं इस वाले में आता हूं तो वो कहता है सब सिस्टम सोर्सिंग डिसीजन। अब मैं जनरल प्रोडक्ट आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूं और नीचे मैंने देखा कि सब सिस्टम मुझे सोर्सिंग डिसीजन कि मुझे सब सिस्टम को आउटसोर्स करना है या नहीं करना। इसके लिए मुझे क्या है जी, हाउ आर वी गोइंग टू डिफरेंशिएट आवर प्रोडक्ट्स इन कस्टमर आईज, राइट। माय जॉब इज टू differentiate my product from my competing brands. My job is to come up with a different product which is not that available in the market. So this is my general long run objective of my company, right? अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये डिसीजन करना है, either I'm gonna outsource or not. I'm in the subsystem, they would be designed by myself, or the subsystem they would be outsourced, right? Right side पे this is strategic subsystem, on the left side this is non-strategic subsystem. Strategic subsystem is we need to be distinctively good at designing and making these. कि जी मुझे डिजाइन में और चीजों को प्रोड्यूस करने में अच्छा होना है, डिस्टिंक्टिव होना है, डिफरेंट होना है। दिस इज माय स्ट्रेटेजिक सब सिस्टम, कि मेरे वो सब सिस्टम जो मुझे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, बनाने में, डिजाइन करने में सपोर्ट करते हैं, वो सारे के सारे मेरे स्ट्रेटेजिक सब सिस्टम होंगे। चलें, नॉन स्ट्रेटेजिक सब सिस्टम्स मैं आउटसोर्स कर लूंगा। डेवलप मैकेनिज्म टू रिजर्व आर्किटेक्चरल नॉलेज। अब देखें, आप एक, तो जो नॉन स्ट्रेटेजिक वाले हैं वो आर्किटेक्चर नॉलेज है और वो सारी चीजें मैं आउटसोर्स कर सकता हूं। जिन चीजों का ताल्लुक होगा मेरे प्रोडक्ट को डिफरेंट डिस्टिंक्टिव बनाने में, डिजाइन करने में, वो मेरे लिए स्ट्रेटेजिक होंगे। अगर थोड़ा सा आगे चलिएगा, जब स्ट्रेटेजिक सब सिस्टम्स की आगे कंपोनेंट्स, एक सब सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स काम करते हैं, मैंने पहले बताया, तो वो कहता है जी एक्सप्लोर ऑल सब सिस्टम्स इनटू कंपोनेंट्स एंड ग्रुप देम इनटू फैमिलीज। अब एक सब सिस्टम डिफरेंट कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स की फैमिलीज भी मैंने सम अप कर दिया, डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब ये जो फैमिलीज ऑफ कंपोनेंट्स हैं, ये क्या स्ट्रेटेजिक है या नॉन स्ट्रेटेजिक है? ठीक है, अगर ये स्ट्रेटेजिक है तो क्या होगा और नॉन स्ट्रेटेजिक है तो क्या होगा? अगर तो ये नॉन स्ट्रेटेजिक है तो इसका मतलब है कमोडिटी आउटसोर्सिंग है। मुझे एक सिंपल पार्ट चाहिए, मैं उसको पार्ट को घर बनाने नहीं बैठ जाऊंगा। मुझे एक उसका एक वन ऑफ द कंपोनेंट चाहिए, मैं उसको जाके मार्केट से लूंगा और अपनी गाड़ी में जाके फिट कर लूंगा। अगर वो स्ट्रेटेजिक है तो वील एम फॉर लीडरशिप वेयर पॉसिबल एंड पार्टनरशिप वेयर नेसेसरी। मैं ये चीज देखूंगा कि जहां लीडरशिप पॉसिबल है, जो लीडरशिप रिलेटेड चीजें होंगी वो मेरे लिए स्ट्रेटेजिक है, और जहां पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है वहां मैं पार्टनरशिप करके अपने स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। अगर मेरा वो कंपोनेंट स्ट्रेटेजिक है ही नहीं है, वो नॉन स्ट्रेटेजिक है और दैट इज लाइक कमोडिटी, तो मैं उसको आउटसोर्स कर लूंगा। चलो अभी आगे आएगा। आतिफ साहब, आतिफ आतिफ किधर है? आतिफ 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 ढिल्लों साहब, हेलो जी सर। आतिफ किधर है? आतिफ, जी सर, जी सर। आतिफ तुम क्या कर रहे हो?
तो क्या हुआ? सर ये फेक आईडीज बना के तंग कर रहा है सर। आतिफ तुम्हारा नाम, फेक आईडी बनाई है। आतिफ सर मेरे क्या- नाम की सर एक और आईडी चल रही है सर, इसमें सर 2 आईडी चल रही हैं आतिफ ढिल्लों की सर, दूसरा आतिफ ढिल्लों पता नहीं कौन है। भाई देख लेना, कोई भी नहीं कुछ और आतिफ साहब कुछ और ना ढीला हो जाए, बस ये देख लीजिएगा। मैंने सर सीरियसली 2 आईडी चल रही हैं सर, आप चेक कर लें जाके लिस्ट में। अच्छा राइट, चले नो प्रॉब्लम। अच्छा अब वो स्ट्रेटेजिक, वो जो फैमिली ऑफ कंपोनेंट्स है वो नीचे आ गई। फॉर ईच फैमिली इज इन्वेस्टमेंट जस्टिफाइड। अब आपके सब सिस्टम में कंपोनेंट, आपने ये देखा कि यार ये कंपोनेंट्स की जो फैमिली है ये भी स्ट्रेटेजिक है। अब जितने पैसे मैंने उस फैमिली ऑफ कंपोनेंट्स को बाय करने पे लगाने हैं वो कहता है वो जस्टिफाइबल है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट इसलिए आ गई कि हमें अल्टीमेटली ये डिसाइड करना है ना कि हमारे लिए स्ट्रेटेजिक क्या है, नॉन स्ट्रेटेजिक क्या है। स्ट्रेटेजिक को हम खुद करेंगे, नॉन स्ट्रेटेजिक को हम आउटसोर्स करेंगे। तो अगर जो पैसे उस फैमिली ऑफ कंपोनेंट्स पे लगाने पड़ रहे हैं जो स्ट्रेटेजिक है, उस पे जो इन्वेस्टमेंट लग रही है वो जस्टिफाई है कि नहीं है। अगर वो जस्टिफाइबल है तो फाइन, फोकस करें, इन्वेस्ट करें और वर्ल्ड क्लास अपना प्रोडक्ट डिजाइन करें। अगर वो जस्टिफाइबल नहीं है तो नो है तो उसको आउटसोर्स कर लें। यहां तक। अब ये बात बड़ी सिंपल है। व्हेन यू बाय आईफोन, आईफोन की बैक पे क्या लिखा होता है? दिस इज डिजाइन इन कैलिफोर्निया, राइट, असेंबल्ड इन चाइना। अब आईफोन का कोर प्रोसेस क्या है? उसका डिजाइन, उसका इनोवेशन, राइट, उसका लेआउट प्रोडक्ट का। तो वो क्या करता है? वो एप्पल करता है, और एप्पल कहाँ करता है? कैलिफोर्निया में करता है। बाकी उसके पार्ट्स की असेंबलिंग चाइना में सस्ती होती है, ज्यादा अच्छी होती है, तो वो चाइना से करवा लेता है। बात बड़ी सिंपल है कि अगर आपको ये लगता है, मतलब मैंने, ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मेरी कंपनी का अगर मेड इन चाइना लिखा आ जाए आईफोन के ऊपर, असेंबल्ड इन चाइना की बजाय मेड इन चाइना आ जाए, मुमकिन है, ये आ भी सकता है। जो हालात है, अमेरिका के हालात बुरे हो रहे हैं, चाइना स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। 2 साल बाद का जो वो है आईफोन, उस पर पॉसिबल है ये लिखा हो कि वो मेड इन चाइना है। लेकिन अगर उस पर मेड इन चाइना ऐसा लिखा जाएगा तो उससे क्या होगा कि कस्टमर की साइकोलॉजी पे उसका इम्पैक्ट अब बहुत बड़ा और बहुत डिफरेंट होगा। तो आपको यही देखना है कि यार क्या चीज़ मेरे लिए स्ट्रेटेजिक है, और उसमें आपको पता है जी मैंने उसका मदरबोर्ड लगाना है, मैंने उसका प्रोसेसर लगाना है, प्रोसेसर मैंने खुद बनाना है, ये मैंने इंटेल से लगवाना है, राइट। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी दसी हैं।